Hello friends, good morning. Welcome to online study of Ashadeep International School. Standard 4th GK. Dear students, today I am going to teach you chapter 41 in this subject, and the name of chapter is the most and the least in India. इंडिया के सबसे मोस्ट और सबसे लीस्ट, मोस्ट मीन्स ज़्यादा एंड लीस्ट मीन्स कम, तो उसके बारे में आज हम यहाँ पे ये चैप्टर में स्टडी करेंगे. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज नेम द लार्जेस्ट स्टेट इन द टर्म ऑफ एरिया इन इंडिया. इंडिया में देयर आर टोटल 28 स्टेट्स, राइट. तो उसमें से सबसे लार्जेस्ट स्टेट एरिया वाइज कौन सा है? तो द राइट आंसर इज राजस्थान. राजस्थान इज द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया. 28 स्टेट के अंदर से सबसे बड़ा स्टेट इंडिया का राजस्थान है. लुक एट दिस, दिस इज द मैप ऑफ इंडिया एंड हियर यू कैन सी दिस इज राजस्थान. एरिया वाइज लार्जेस्ट बोले तो राजस्थान है. नाउ सेकेंड नंबर, विच इज द साउथर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया. इंडिया का साउथर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है? तो द आंसर इज इंदिरा पॉइंट. द साउथर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज इंदिरा पॉइंट. सी, दिस इज द पिक्चर ऑफ इंदिरा पॉइंट. नाउ थर्ड क्वेश्चन, नेम द लार्जेस्ट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट इन टर्म ऑफ एरिया. अभी वापिस एरिया वाइज नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है सबसे लार्जेस्ट, तो इट इज अरुणाचल प्रदेश. इंडिया का ही एक स्टेट है अरुणाचल प्रदेश. इट इज द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट इन टर्म ऑफ एरिया, मीन्स लार्जेस्ट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट. सी, दिस इज अरुणाचल प्रदेश. फोर्थ नंबर, विच इज द मोस्ट पॉपुलर स्टेट. सबसे फेमस, पॉपुलस दैट मीन्स कि फेमस, सबसे ज़्यादा फेमस. इंडिया के 28 स्टेट्स है, उसमें से सबसे ज़्यादा फेमस स्टेट कौन सा है? तो द आंसर इज उत्तर प्रदेश. सी, दिस इज द मोस्ट पॉपुलर स्टेट ऑफ इंडिया. लुक एट दिस टाइप ऑफ शेप इन अवर इंडियन मैप यू कैन फाइंड दिस इज उत्तर प्रदेश. ओके, नाउ लास्ट फिफ्थ नंबर, the only active volcano in India is located in which union territory in India? Children, you know how many total union territories are there in India? You already studied in your maybe in SS last year, right? So there are 5 union territories in India. So from there, in which union territory active volcano is located? So the answer is Andaman and Nicobar Island, right? See, one of the union territory, Andaman and Nicobar Island is there, and there you can see active volcano is located. See, this is the active volcanoes. See, from this volcano you can see here some smokes है ना, means this is the active. Okay, so that you can find smoke. Now sixth number, name the smallest state in term of area. Now smallest state in term of area, we have seen a largest state in term of area. Now here the question about smallest state in term of area. So the right answer is Goa. Goa is very small in area wise, right? So this is the smallest state in term of area. Have you ever gone Goa? It is very nice. घूमने के लिए वो बहुत ही अच्छा प्लेस है. वहाँ पे there are lot of sea coast है ना, means that what is calling their beach. There are lot of beach in Goa. If you never visited, then you can go and visit and you can enjoy too much there. Now 7 number, the highest memorable road is located in which state? Highest motorable road. So
we can find highest motorable road in Jammu and Kashmir. See, Jammu and Kashmir is the hilly area. There highest roads you can find there only, है ना, in hilly areas. So there are lot of states which are in hilly areas, but highest motorable road you can find in Jammu and Kashmir only. See, in this picture you can see the highest motorable road. Now 8 number, name the state with the least population. ऐसे स्टेट का नाम बताओ जिसमें बहुत ही कम पॉपुलेशन हो, बस्ती कम हो, ह्यूमन बींग्स कम रहते हो. तो इट इज़ सिक्किम. सिक्किम के अंदर पॉपुलेशन बहुत ही कम है क्योंकि वहाँ पे हैवी रेनफॉल भी होता है और वेरी कोल्ड भी होती है. एंड बिकॉज ऑफ दिस पॉपुलेशन आर वेरी लेस इन दिस स्टेट. ओके, here I am ending this chapter 41 and now I will start chapter number 42. The name of this chapter is the armed forces. Right, यहाँ पे हम armed forces के बारे में means about military we will study in this chapter. The armed forces protect our country and make us proud. हमारी आर्म फोर्सेस है वो हमारी कंट्री को प्रोटेक्शन देते हैं और हमारी कंट्री का एक प्राउड है, एक गर्व फील होता है हमें ऐसी फोर्स पाके. रोल ऑफ आर्मी. आर्मी का रोल क्या होता है? टू प्रोटेक्ट द कंट्री अगेंस्ट एक्सटर्नल थ्रेट्स. मतलब बाहर के, हमारी कंट्री के बाहर से जो कोई हमारी कंट्री को हानि पहुंचाना चाहते हैं तो उन लोगों से प्रोटेक्शन देने का काम आर्मी करती है. सी, दिस इज अवर आर्मी. Second function of our army is to assist the civil administration during internal security disturbances. इंटरनल सिक्योरिटी के अंदर कोई भी डिस्टर्बेंस होता है तो उसका पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको असिस्ट करने का काम, उसको गाइड करने का काम भी आर्मी करते हैं. दूसरा उसका फंक्शन है टू ऑर्गेनाइज रिलीफ ऑपरेशंस ड्यूरिंग नेचुरल कैलेमिटीज़ लाइक फ्लड्स एंड अर्थक्वेक. कोई नेचुरल कैलेमिटीज़ जैसे कि फ्लड आता है, पूर आता है, बहुत हैवी रेनफॉल होती है, उसकी वजह से कंट्री में पूर आता है कोई भी स्टेट के अंदर, या फिर कोई भी स्टेट के कोई भी पार्ट के अंदर अर्थक्वेक या फ्लड आता है तो उसमें रिलीफ ऑपरेशन का काम भी आर्मी करती है. रिलीफ ऑपरेशन दैट मीन्स कि उन लोगों को उसमें से बचाना है, कहीं पे फंस गए हैं फ्लड की वजह से या फिर अर्थक्वेक की वजह से, तो उनको बाहर निकालना है, बचाना है, तो उसमें भी आर्मी हमें हेल्प करती है. मीन्स दिस इज ऑल्सो द फंक्शन ऑफ आर्मी. नाउ द रोल ऑफ नेवी. अभी नेवी है तो उन लोगों का रोल क्या है? नेवी दैट मीन्स के दे आर वर्किंग इन वाटर बॉडीज, राइट. तो उन लोगों का फंक्शन क्या होता है? टू सेफ गार्ड अवर नेशनल इंटरेस्ट ऑन द अंडर सरफेस ऑफ द ओशंस. ओशंस के अंडर सरफेस दैट मीन्स ओशंस के नीचे गार्ड करता है. सेफ गार्ड मतलब हमारे नेशनल इंटरेस्ट है, उन लोगों को प्रोटेक्शन देता है, उन लोगों को सेफ रखता है. कौन? नेवी. See, these are the navies. They are continuously working on the surface of the water, that means in oceans and in sea. Role of navy. Navy का role क्या है? Means the people who are working in navy, the role they are playing the very important role. So their role is to organize relief operation during natural calamities like floods and earthquake. Same like the army, their functions are also same to organize relief operations. मतलब बचाने का काम करते हैं. नेचुरल कैलेमिटीज लाइक फ्लड्स एंड अर्थक्वेक आता है तो उसमें उन लोगों को बचाने का काम करता है. सेकेंड वन इज टू प्रोवाइड एड टू सिविल अथॉरिटीज.
कोस्ट गार्ड होता है उसमें, नेवी में कोस्ट गार्ड भी होता है, मतलब किनारा, कोस्ट दैट मीन्स किनारा, तो किनारे पे भी कोई गार्ड करता है, तो वो पीपल का रोल क्या होता है, टू प्रिवेंट पॉचिंग, स्मगलिंग एंड अदर इलीगल एक्टिविटीज़। कुछ क्या होता है, अदर कंट्रीज़ के साथ हमारे ट्रेड के रिलेशंस हैं, राइट, एंड मोस्ट ऑफ ट्रेड वी आर डूइंग वाया ओशंस एंड सी। तो यहाँ पे क्या होता है, स्मगलिंग होता है, इनलीगल एक्टिविटीज़ होती है, तो वो सबको प्रिवेंट करने का काम, रोकने का काम कौन करता है, कोस्ट गार्ड, जिसको हिंदी में तट रक्षक बोलते हैं, राइट। मतलब जहाँ पे भी बीच होता है वहाँ पे कोस्ट गार्ड होते ही हैं, जो कोस्ट की मीन्स इलीगल एक्टिविटीज़ है उसमें प्रिवेंट करता है उसको। दूसरा क्या करता है, पॉल्यूशन कंट्रोल करता है, रिस्क्यूज एंड प्रोटेक्शन ऑफ द मरीन एनवायरनमेंट। मरीन एनवायरनमेंट दैट मीन्स नेवी में जो भी है वो सब का, उनके एनवायरनमेंट का प्रोटेक्शन करना, उसके एनवायरनमेंट को कंट्रोल करना। कुछ मतलब वेदर में चेंजेस होता है, एनवायरनमेंट में चेंजेस होता है, तो सारे नेवी में जो पीपल हैं उन लोगों को इन्फॉर्म करना, दैट ऑल आर द रोल ऑफ कोस्ट गार्ड। ओके, द अदर रोल इज टू ऑर्गेनाइज रिलीफ ऑपरेशन ड्यूरिंग नेचुरल कैलेमिटीज लाइक फ्लड्स एंड अर्थक्वेक्स। मीन्स ये रोल है, दिस फंक्शन आर द सेम इन ईच एंड एवरी मीन्स स्टेटस, राइट। रोल ऑफ एयर फोर्स, नाउ इट्स टर्न टू एयर फोर्स। एयर फोर्स दैट मीन्स कि प्लेन में काम करने वाले, राइट, टू प्रोटेक्ट द कंट्री थ्रू काउंटर एयर, काउंटर सरफेस, स्ट्रेटेजिक एंड कॉम्बैट सपोर्ट ऑपरेशंस। एयर फोर्स में जो पीपल काम करते हैं उन लोगों का फंक्शन होता है, उन लोगों का वर्क होता है कि कंट्री को प्रोटेक्ट करे एयर से, काउंटर सरफेस और स्ट्रेटेजिक, और उन लोगों को कॉम्बैट सपोर्ट ऑपरेशन भी देते हैं। मीन्स एयरफोर्स में अगर एरोप्लेन में कोई प्रॉब्लम आई है तो उन लोगों उनके ऑपरेशन का सपोर्ट करने का, दैट ऑल द एक्टिविटीज़ आर हैंडल्ड बाय द एयरफोर्स ओनली। To prevent aid to civil authorities and organize relief operation during natural calamities like floods and earthquakes. Same functions here also you can find in Navy, Army and Air Force. There are same functions to protect the country by natural calamities like flood and earthquakes. Another function to provide aid for the large scale movement of military and paramilitary personals, right। कुछ लार्ज स्केल में एड देते हैं, एड दैट मीन्स कि मेडिकल सपोर्ट करते हैं। जब कोई हानि आ जाती है प्लेन में तो वो टाइम पे उनको ये एड सपोर्ट करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, टू कैटर टू द नीड ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ एयरमैन एंड जवान्स, inner moat and incible outpost. These are the role of Air Force. So dear students, here I am going to end this chapter. In this chapter we studied about Army, Navy and Air Force. I hope you all understand this chapter very nicely. If you don't understand, then revise this video 2 or 3 times so that you can understand very well. Okay, thank you.